Good morning, dear students. Last time we had solved few examples related to quadrilaterals. Today I am going to solve few questions from exercise 8.1 which is related to quadrilaterals. Question number first is the angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:9:30. Ratio between angles of a quadrilateral is 3:5:9:30. Find all the angles of the quadrilateral. To find all angles of quadrilateral. Okay, so I am going to solve this. You know this is very easy question. It is based on angle sum property of quadrilaterals. First let the angles of quadrilateral are 3x, 5x, 9x and 30x. Then by angle sum property of quadrilaterals, their sum will be equal to 360. 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. Okay, so when we add all this, we have 3 plus 5 8, 8 plus 9 17, 17 plus 13, that is 30x is equal to 360. Then from here x is equal to 360 divided by 30, that is 3 1 ja 3, 12 ja, x is 12. So clearly angles of quadrilateral are 3x, that is 3 into 12, 36 degree, 5x, that is 5 into 12, that will be 60 degree, 9x, that is 9 into 12, that is 108 degree, 108 degree, and 13x, that is 13 into 12, that is 12 3 is 36 and 12 1 is 12, 12 plus 3 15, 150 60. Okay, so angles are 36 degree, 60 degree, 108 degree and 150 60. Okay, now next I am going to solve question number second. So read question number second, everyone. Question number second is, if diagonals of a parallelogram are equal, prove that it is a rectangle. It is already proved. Theorems मैंने लेकर के prove कराया है. Now read question number third. So that if diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle, then it is rhombus. It is also completed. It has already proved. I have proved this. Question number 4. So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ये भी मैंने prove कराया है. Question number 5. So that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. ये मैंने आपको homework दिया था, कईयों ने मुझको prove करके ये भेजा था. So question number second, third, fourth और fifth already हो चुका है. Now I am going to solve question number 6. See what is question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD. There is a parallelogram ABCD
and the diagonal AC bisects angle A. What is given here? In parallelogram ABCD, diagonal AC bisects angle A. So that it bisects to prove, first it bisects, means AC bisects angle C, and second ABCD is rhombus. ABCD is rhombus. I am going to prove this AC bisects angle C. It is already given that AC bisects angle A, means ये एंगल और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम ले लें तो ये दोनों इक्वल हैं. इसको हम 3 और 4 ले लेते हैं. ओके, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट ABCD is a parallelogram. So by the definition of parallelogram, AB will be parallel to CD and AD will be parallel to BC. Okay, so I am going to prove this. See this AB and DC are parallel to each other, intersected by transversal AC. So angle 1 is equal to angle 4. Clearly angle 1 will be equal to angle 4. They form alternate interior angles. Okay, because lines are parallel intersected by a transversal, so alternate interior angles will be equal. Suppose this is equation number first. Also this AD is parallel to BC. AD parallel to BC. Why? Because these are opposite sides. AD and BC are opposite sides, and AB and DC are opposite sides. And ABCD is a parallelogram, and in a parallelogram opposite sides are parallel. It is by its definition. And AC is transversal. AC is transversal. Okay, so angle 3 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3. The same way alternate interior angles बना रहा है, आप देख सकते हो. Here ये alternate interior angles है, ये lines parallel है, ये transversal है, and चूंकि lines parallel है तो alternate interior angles equal होंगे. That is equation second. Now angle 1 is equal to angle 2. Why? Angle 1 और angle 2 equal है. Why? Because AC bisects angle है. तो 2 equal parts में divide करेगा. Because AC bisects angle A. Okay? तो AC angle A को 2 equal parts में divide करेगा, जिसमें एक angle 1 है और एक angle 2. Now यहाँ पे देखो angle 1 angle 4 के equal है. Clearly angle 1 is replaced by angle 4 and angle 2 angle 3 के equal है, so angle 2 will be replaced by angle 3. This is comes from first and second. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे from these two, this one and this one, इन दोनों से आप देख सकते हो angle 2 is equal to angle 3 and angle 4 angle 2 sorry here angle 2 is equal to angle 3, so angle 2 is replaced by angle 3, and angle 1 is equal to angle 4, so angle 1 is replaced by angle 4. So from here we have angle 4 is equal to angle 3. तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया. इसका मतलब ये एंगल C जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. किसकी वजह से? AC की वजह से. क्लियरली AC bisects एंगल C. तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियरली AC bisects एंगल C. तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया. ये फर्स्ट प्रूफ. नाउ वी हैव टू प्रूफ that this parallelogram ABCD is rhombus. We have to prove that ABCD is rhombus. So what we have to show here for being its rhombus? We have to
fulfill its definition of rhombus. And what is the definition of rhombus? It is a parallelogram in which any pair of adjacent sides are equal. ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो जाए, ऐसा होता है। तो पैरेललोग्राम तो ये पहले से गिवन है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इट इज ऑलरेडी गिवन। ओनली वी हैव टू शो any pair of its adjacent sides are equal for proving that it is a rhombus. So I am going to prove that this AD and DC are equal. अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, adjacent sides इक्वल हो जाएंगे, adjacent sides इक्वल हो जाएंगे, अपने आप ये rhombus हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो यहाँ पे स्पॉट पड़ रहा होगा, तो मैं इसको फिगर को फिर से बना दूंगा। यहाँ पे स्पॉट पड़ रहा होगा, मैं इस फिगर को यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज ए बी सी डी, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट AD and DC are equal. See, angle 1 is equal to angle 4. Here you can see. Now, angle 1 is equal to angle 4. This is from first, and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 and angle 2 are equal because AC bisects angle A. ये है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? इन दोनों को आप देखो ध्यान से। तो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल। Clearly from above 2 we have angle 2 is equal to angle 4. लेफ्ट साइड्स दोनों का सेम है तो राइट साइड सेम होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। नाउ इन ट्रायंगल DAC में, इन ट्रायंगल DAC इसके जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये आपस में इक्वल हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूव्ड है। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। और किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। क्या आपको पता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर AD is equal to CD. Why? Because in any triangle if 2 angles are equal, then their opposite sides are also equal. Okay? So अब आप देखो ये AD और CD इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD a pair of adjacent sides becomes equal. Adjacent sides becomes equal. Okay, so quadrilateral ABCD will be rhombus. ये क्वेश्चन नंबर 6 का। Now I am going to prove question number 7. Question number 7 is ABCD is a rhombus
so that AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. आपको प्रूफ करना है, ये एज ए थ्योरम भी लिया जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, कि रोम्बस के डायगोनल्स अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं. प्रूव दैट diagonals of rhombus bisects opposite angles. ओके, तो आप एक rhombus ले लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे rhombus ले लेता हूँ, ABCD. rhombus क्या होता है? It is a quadrilateral in which all four sides are equal और इसका एक diagonal AC. आपको प्रूफ करना है कि AC अपोजिट एंगल्स एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा और BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा. तो मैं पहले AC का प्रूफ कर देता हूँ, सिमिलरली वो BD के लिए भी हम लोग देख लेंगे. सो व्हाट इज गिवन हियर? व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज rhombus. ये ABCD जो है वो rhombus है and AC and BD are their diagonals. To show, to prove, बहुत ही इजी सा प्रूफ है. फर्स्ट, diagonal AC bisects angle A and angle C. and second प्रूफ करना है कि diagonal BD bisects angle B and angle D. देखो सेम वे से प्रूफ हो जाएगा, कोई भी पहला प्रूफ कर देते हैं, सिमिलरली सेकंड में लिख दूंगा यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. बहुत ही इजी सा प्रूफ है. आप ऐसा करो कि ट्रायंगल ABC को कंसीडर करो और ADC को कंसीडर करो. इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC. ABC this one, ADC this one. तो AB AD के इक्वल होगा, AB इक्वल टू AD, बिकॉज रोम्बस है, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, सो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट्स इट. सारे साइड्स इक्वल है. अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. और हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DC. सेम रीजन सेम है इसका भी. ये साइड्स हैं, रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं. AC दोनों ट्रायंगल्स में, ABC में भी AC है, ADC में भी AC है. AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. AC इज इक्वल टू AC. इट इज कॉमन साइड. यहाँ से ट्रिपल एस कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ADC बाय ट्रिपल एस कॉन्वेंसी. और 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्वेंट हो जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ये आपको पता है. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख लो, फिर देख लो कि हमने क्या प्रूव कर दिया. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप देखो, मैं BAC पहले लेता हूँ. तो एंगल BAC, क्लियरली एंगल BAC विल बी इक्वल टू, देखो आप BAC लिया मैंने, यहाँ DAC होगा, एंगल DAC. ओके. और BCA लो, एंगल BCA, तो ये किसके इक्वल होगा? DCA के इक्वल होगा, एंगल DC. दिस इज बाय CPC, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट. तो आप देखो यहाँ पे BAC ये एंगल हमने प्रूव कर दिया, DAC इस एंगल के इक्वल, एंड BCA ये एंगल प्रूफ हो गया, DCA इस एंगल के. तो हमने एक तरह से इन दोनों से क्या प्रूफ किया कि एंगल A भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एंगल C भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. किसके वजह से? बिकॉज ऑफ AC. क्लियरली फ्रॉम दीज टू we conclude that AC bisects angle A as well as angle D. And similarly
जब आप BD ड्रॉ करोगे तो इस ट्रायंगल को DAB को और DCB को कॉन्वेंट शो कर दोगे, सेम वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, तो ये आप प्रूफ करना, मैं लिख दे रहा हूँ बस, लेकिन आप प्रूफ करना। सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट diagonal BD bisects angle B as well as angle B. Similarly, we can prove diagonal BD bisects angle B and angle D. Okay, that is the proof of question number 7. Now I am going to prove question number 8. See what is question number 8. Read it carefully. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. This is a rectangle. ABCD is a rectangle. Diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Okay. So that ABCD is a square. पहले given क्या है यहाँ? It is given here that quadrilateral ABCD is rectangle. ये rectangle है. Rectangle है तो इसके सारे angles जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे. All these angles are 90 डिग्री. या ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल ये ऑलरेडी गिवन है, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन को तो फुलफिल करेगा। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको शो क्या करना है, और इसमें गिवन है डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C. So that to prove, क्या प्रूफ करना है हमें? डायगोनल BD bisects angle B as well as एंगल D। ये सेकेंड प्रूफ करना है, और फर्स्ट प्रूफ करना है आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है। आप देखो फर्स्ट को ही अगर हमें प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो और सारे साइड्स इक्वल। या फिर अगर हम उसको दूसरे तरीके से आए, अगर पैरेललोग्राम से आए, तो इट इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्क्वायर इज रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। स्क्वायर में रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों के गुण होते हैं, तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर रोम्बस भी। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही आपने कहा कि ये रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स 90 हो गए, और जैसे ही आपने कहा कि ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो आपने इनडायरेक्ट रूप से ये कर दिया कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 है और एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल, मतलब कि ये रोम्बस है। मींस दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन। देखो आप स्क्वायर को डिफाइन कहाँ से कर सकते हो? स्क्वायर को आप डिफाइन कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल से, स्क्वायर को आप डिफाइन कर सकते हो पैरेललोग्राम से, स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हो रेक्टेंगल से, स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हो रोम्बस। जब आप कहोगे कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल तो आपको ये बोलना पड़ेगा इट्स ऑल फोर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल।
जैसे आप कहोगे कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको करना पड़ेगा इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे ही आप कहोगे कि इट इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आपने बोल दिया, तो पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल तो ऑलरेडी आपने कह दिया, सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो वहीं से ये प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट करके पहले लिख देता हूँ, कि नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि स्क्वायर इज अ rectangle in which any pair of adjacent sides are equal। आप समझ रहे हो? तो रेक्टेंगल तो पहले से गिवन है ना, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है पहले से गिवन। तो सिर्फ स्क्वायर अगर आपको शो करना है, तो कोई एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का आप इक्वल शो कर दो, बात खत्म हो। ठीक है, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का आप इक्वल शो कर दो, बस हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। कंसीडर इन ट्रायंगल ABC, ये ABC आपने लिया, एंड ADC, ट्रायंगल ABC, ABC ले लो, ADC ले लो। तो ABC में AB ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, गिवन है। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। व्हाई? बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DC। व्हाई? बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एंगल C, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंड AC इज कॉमन इन बोथ। AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड, है ना? तो देखो भाई, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो। सो भाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, दीज टू बाय ASA, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by ASA complex। अब देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से AB के कोरस्पॉन्डिंग देखो AB इज इक्वल टू AD, दिस इज बाई CBC। तो AD और AB इक्वल हो गया। तो ये देखो AD और AB क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो गया। क्लियरली यहाँ से आप कह सकते हो क्लियरली, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच a pair of adjacent sides becomes equal, and that is the definition of square. Clearly quadrilateral ABCD is square. ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया, that is proof of the first one. सेकेंड आपको प्रूफ करना है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर रॉम्बस होता है, और रॉम्बस अभी हमने प्रूफ किया कि रॉम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दैट इज होमवर्क फॉर यू। प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ओके, ये आप प्रूव कर लेना। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।